अब वक्त है दूसरे पैनल को स्टेज पर आमंत्रित करने का, जहां पर हम बात करेंगे बिजनेस और रियल एस्टेट सेक्टर की। इस सेक्टर से जुड़े हुए तमाम पहलुओं को समझेंगे। इसको समझने के लिए मैं पहले अपने दो सहयोगी रोहित बंसल और मनोज जोशी को स्टेज पर आमंत्रित करना चाहूँगी, और इसके साथ साथ जो अपना अनुभव रखेंगे हमारे बीच में एस्टीम्ड गेस्ट, अब मैं उनसे भी आपका परिचय करा देती हूँ। हमारे बीच में सुनील जीत सिंह जी मौजूद हैं, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं VCS ग्रुप के, और इसके अलावा हमारे साथ हिमांशु पंत जी मौजूद हैं, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं एपिक रियल वेंचर्स के। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। और इसी के साथ साथ जैसे कि हम बात कर रहे हैं, सुनील जीत सिंह जी के अनुभव हम सुनेंगे, जो क्वालिटी और ट्रस्ट का एक पर्याय बनकर हमारे बीच में आए हैं। मार्केटिंग की हम जब बात करेंगे या लग्जरी रियल एस्टेट सेक्टर के एक नए मुकाम को हासिल करने में क्या चुनौतियां अब तक सामने आई हैं, इस पर बात करेंगे हिमांशु पंत जी। ओवर टू यू रोहित एंड मनोज। शुक्रिया। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਮਾ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖਾ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਰੋਟੀ ਕੱਪੜਾ ਔਰ ਮਕਾਨ, ਇਹ ਨਾਰਾ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਘਰ, ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਛੱਤ, ਪਰ ਉਸ ਛੱਤ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ। ਆਮ ਬੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਘਰ ਬਣ ਜੇ, ਖਾਸ ਬੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਖਾਸ ਘਰ ਬਣ ਜੇ। ਖਾਸ ਘਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਗੇ, ਆਮ ਘਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਗੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਦੋ ਖਾਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਨੀਲਜੀਤ ਸਿੰਘ MD VCS ਗਰੁੱਪ, ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਪੰਥ MD ਐਪੀਕਿਊ ਰੀਅਲ ਵੈਂਚਰ। ਤਾਂ ਸੁਨੀਲ ਜੀ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਨਵਾਂ ਐਡਵੈਂਚਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਹੋਟਲ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਮਾਲ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੁਰਜ ਖਲੀਫਾ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਜੀ ਮੀਡੀਆ ਫॉर ਇਨਵਾਈਟਿੰਗ ਅਸ ਇਹ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਚੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਦਿੱਤੀ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਵੈਂਚਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਰੀਜਨ ਦਾ ਫਸਟ ਆਈਕੋਨਿਕ ਪੈਂਸਿਲ ਟਾਵਰ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮਿਨੀ ਬੁਰਜ ਖਲੀਫਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਖਾਸ ਕੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਇਸ ਪੈਂਸਿਲ ਟਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਨੀ ਬੁਰਜ ਖਲੀਫਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ। ਜੀ ਜੀ, ਖਾਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਨੀਚੇ 66,000 ਸਕੁਅਰ ਫੀਟ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲਸ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸੀਅਤ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਲਗਜ਼ਰੀ ਹਰ ਇੱਕ ਕੋਈ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਐਲੈਂਟੇ ਮਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਫਾਈਨੈਂਸ ਇੱਕ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਾਂਡਸ ਨੇਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬ੍ਰਾਂਡਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜਾਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਪੰਤ ਜੀ, ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੱਡਾ ਮਾਲ ਲੈ ਕੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੁਰਜ ਖਲੀਫਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਇੱਥੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਾਜਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੋਹਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦੁਬਈ ਨੂੰ ਕੰਪीट कर रहा है। नमस्कार जी, पहले आपके सभी दर्शकों को और जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने हमें इनवाइट किया और आप लोगों के साथ रूबरू होने का मौका दिया। रियल स्टेट एक आप मान के चलिए, क्योंकि पिछले 22 साल से मैं इस इंडस्ट्री के साथ जुड़ा हुआ हूँ। अलग अलग प्रोजेक्ट्स और अलग अलग कंपनीज में काम किया है और इसको उठते हुए देखा है। और जिस पहलू पे हम आज बात कर रहे हैं कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का कंस्ट्रक्शन जो हमने अपनाया है, वो आज की डेट में एक बहुत छोटी चीज़ रह गया है। मतलब आप ये मान के चलिए, जिस तरह से टेक्नोलॉजी में AI और बाकी चीज़ों का योगदान रहा है और जिसकी वजह से सारे बिजनेस का जो इम्पैक्ट है वो एक ग्लोबलाइजेशन की तरफ मूव कर गया है। तो आज की डेट में आपने जो शुरुआत करी थी, जहाँ पे आपने रियल एस्टेट के लिए बोला था कि एक रियल एस्टेट आया कहाँ से। रियल एस्टेट क्या है कि एक हम जब कहते हैं एक बेसिक चीज़, इट्स अ रोटी कपड़ा और मकान। तो मकान जो है वो एक बहुत बेसिक चीज़ है। तो मकान से रियल एस्टेट शुरू हुआ और उसके बाद हम उसको अगले नेक्स्ट लेवल पे ले गए, जहाँ हमने लाइफस्टाइल के एलिमेंट्स ऐड किए।
अब वो लाइफस्टाइल के एलिमेंट्स जब हमने ऐड किए तो हमने कुछ चीज़ें बाहर से सीखी, कुछ हमने वेस्टर्न कंट्रीज से अपनाई, कुछ हमने खुद निजात करी, क्योंकि ऑब्वियसली हम जब एक स्पेसिफिक मार्केट की बात करते हैं तो वहाँ पे हमें लगता है कि हमें उस मार्केट के हिसाब से प्रोडक्ट बनाना चाहिए, वहाँ की जो ज़रूरत है वो वहाँ के हिसाब से हमें घर बनाना चाहिए। तो पूरे इंडिया में अगर आज आप बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा जो एक फोकस है, और इनफैक्ट हमारे प्राइम मिनिस्टर और बाकी गवर्नमेंट्स का भी एक फोकस रहता है, जहाँ पे हम कहते हैं कि EWS इकोनॉमिक वीकर सेक्शन जो है उनके लिए घर बने, उनको घर मिले, उनको छत मिले, और वो बहुत ज़रूरी है आज की डेट में। सो उसके ऊपर जितना काम मेरे ख्याल से इंडिया में हुआ है, मुझे नहीं लगता और किसी कंट्री में ये हुआ है। बिल्कुल। तो अब बात करते हैं, जो आपने पूछा मोहाली को हम कैसा बना रहे हैं, तो मोहाली आने वाले टाइम में आप ये देखिए कि आज की डेट में इसको दूसरा गुड़गांव कहा जाता है। द वे जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा, इसकी कमर्शियल रिक्वायरमेंट बढ़ी, सो आज कोई कुछ भी कहे, मोहाली अगर इसको हम टियर 2 टियर 3 सिटी में भी काउंट करते हैं तो जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पिछले कुछ सालों में हुआ है वो काबिल तारीफ़ है। और जिस तरह के स्टैंडर्ड सेट हुए हैं रियल एस्टेट में, और आई थिंक वो आज की डेट में बड़े बड़े मेट्रोज में नहीं है। सो इट्स अ वेरी वेरी गुड मार्केट टू कम इन। ਸੁਨੀਲ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋੜ ਕਾਢ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਕਨੋਮਿਸਟ JB ਸੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਡਿਮਾਂਡ ਆਪ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਬ੍ਰਾਂਡ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਕਲੱਬ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਨੀਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਔਰ ਇਹ ਟਾਈ ਅਪ ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਪਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਪੇਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ? ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੀਡ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮੱਧਿਆ ਮਾਰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ PR 7 에ਅਰਪੋਰਟ ਰੋਡ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਮੋਹਾਲੀ ਦਾ ਮੱਧਿਆ ਮਾਰਗ ਇਹ ਬਣੂਗਾ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਕਵਰ ਅਪ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬਿਲਡਅਪ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਲਈ, ਅੱਜ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਕਲੱਬ ਇੱਕ ਵੀਕਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹਰੇਕ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਪੂਰਾ ਵੀਕ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਲਾਸਟ ਵੀਕਐਂਡ 'ਤੇ ਇੱਕ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਸਭ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਨੀਡ ਹੈ ਕਲੱਬ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬ੍ਰਾਂਡ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਾਰਦੋਸ, ਜੋ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 5 ਹੀ ਬ੍ਰਾਂਚਿਸ ਨੇਗੀਆਂ, ਅਤੇ 5th ਬ੍ਰਾਂਚ ਵਿਦ ਅਸ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਨਾਲ ਬ੍ਰਾਂਡ ਕਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਗੁੜਗਾਉਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਸਰ ਜਿਵੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁੱਚੀ, ਅਰਮਾਨੀ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਆਮ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਾਂਡਸ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਬ੍ਰਾਂਡਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੁਟੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਆਫ ਬ੍ਰਾਂਡਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਮਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ। हाँ बिल्कुल। पंत साहब, हम बात करते हैं कि आपने बोला कि मिडिल क्लास या EWS की बात करते हैं, तो मिडिल क्लास के लिए शहर बड़ा हो रहा है, शहर में आप करोड़ों की बात करते हैं, मिडिल क्लास के लिए कहाँ स्थान बन रहा है? कोई है जगह मिडिल क्लास के लिए? उसके लिए अफोर्डेबल हाउसेज कहाँ हैं? सब दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं कि जो सरकार, जब आप कोई भी बिल्डर या डेवलपर कोई प्रोडक्ट या कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करता है तो उसमें एक बहुत बड़ा एक टर्मिनोलॉजी होती है, जिसको हम कहते हैं EWS। तो वो EWS देना मैंडेटरी है, चाहे वो बड़ी मेगा टाउनशिप कर रहा है या छोटी टाउनशिप कर रहा है या ग्रुप हाउसिंग कर रहा है, तो उसमें उसको EWS कंट्रीब्यूशन देना बहुत ज़रूरी है। सो आज की डेट में जितना बड़ा हाथ रियल एस्टेट का इन टर्म्स ऑफ एडिंग टू इंफ्रास्ट्रक्चर है, आई थिंक हम सब जानते हैं, अगर हम आंकड़ों की बात करें तो एग्रीकल्चर के बाद अगर कोई दूसरी इंडस्ट्री जो ऐड ऑन करती है GDP में, वो है रियल एस्टेट है। तो वो EWS की वजह से उसका इम्पैक्ट बहुत हाई है। मिडिल क्लास। सो अब आ जाते हैं बात मिडिल क्लास के लिए। तो मिडिल क्लास के लिए जहाँ पे आज मैं बात करूँ तो ज़मीनी तौर पे देखिए, अगर मैं पिछले 10 से 15 साल का एक ट्रेंड लेके चलता हूँ तो हुआ क्या है कि ज़मीनों की कीमतें बहुत बढ़ी हैं, ज़मीन की कीमतें बढ़ी हैं, अप्रूवल कॉस्ट बढ़ गई है, और साथ ही साथ मान के चलिए मैन पावर कॉस्ट भी बढ़ी, और उसी का एक रीज़न है कि इनकम भी बढ़ी है लोगों की। तो जो मिडिल क्लास की एक डेफिनेशन हुआ करती थी एक पीरियड आज से 10 साल पहले और आज,
दोनों में काफ़ी फ़र्क है। तो आज से 10 साल पहले जो मिडिल क्लास को आप कहते थे वो आज अपर मिडिल क्लास लेवल पे आ गए हैं। तो उन अपर मिडिल क्लास लेवल उनकी जो स्पेंडिंग पावर है वो भी पिछले 10 सालों में बहुत बढ़ी है। तो ऐसा तो नहीं कि मिडिल क्लास बड़े शहरों से बाहर जा रहा है? मिडिल क्लास बड़े शहरों से बाहर जा रहा है तो बहुत सही डिसीजन ले रहा है। आपको मैं एक छोटा सा बताता हूँ कि किस तरह से इसको सोचा जाता है। जब हम छोटे थे तो हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ते थे। तो इकोनॉमिक्स में हमारे पास बताया जाता है 3 तरह की इकोनॉमी होती हैं, एक डेवलपिंग, डेवलप्ड और अंडर डेवलप्ड। सो आज की डेट पे अगर कोई दिल्ली से चंडीगढ़ मोहाली की तरफ आ रहा है, दिल्ली के एनसीआर के आसपास जितना भी एरिया है वो एक सैचुरेशन पे आ चुका है। मतलब सैचुरेशन का मतलब अब उसके ऊपर बियॉन्ड कोई उसको रिटर्न्स आने नहीं है। तो एक आम आदमी जब अपने लिए घर बनाता है वो 2 चीज़ें देखता है कि हाँ मेरे परिवार के लिए ये अच्छा है और कल मेरे बाद क्या ये मेरे बच्चों को कुछ दे के जाएगा। वहाँ पे हम बात कर लेते हैं जो हम इन्वेस्टमेंट रिटर्न ROI की, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की। तो वहाँ पे जब वो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देखता है तो वो मोहाली जैसे शहर में या और Tier 3, Tier 4 सिटीज़ में ज़्यादा बेहतर है एज़ कम्पेयर टू मेन सिटीज़। तो इसी का एक रीज़न है कि बहुत सारे मिडिल इनकम ग्रुप और अपर मिडिल इनकम ग्रुप वालों ने माइग्रेट होना शुरू कर दिया है इन टर्म्स ऑफ देयर हाउसिंग प्रायोरिटी। और अगर मैं बात करता हूँ उनके क्या कहते हैं खुद के रहने की, तो दे प्रेफर टू स्टे इन रेंटल्स। वो रेंट पे वहाँ पे रहते हैं और अपनी इन्वेस्टमेंट अपने घर वालों के लिए वो बाहर बना लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सुनील जी, VCS ग्रुप का जिक्र करिए, एक पासे ਤੁਸੀਂ ਪੈਨਸਲ ਟਾਵਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਹਾਊਸਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੀ ਕੋਈ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਾਊਸਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੋਏਗਾ, ਖਾਸ ਕੀ ਰਹੇਗਾ ਉਸ ਦਾ? ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲੈਂਡ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਚੁੱਕੇ ਨੇਗੇ ਅਤੇ ਅਪਰੂਵਲ ਦੀਆਂ ਫੀਸਿਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਲਈ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਘਰ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਨ ਕਮਿੰਗ ਵੀਕ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ VCS ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਰੈਂਟ ਆਊਟ ਕਰਕੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਡੇਲੀ ਵਰਕਰ ਹੈ, ਡੇਲੀ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਆਪਣਾ ਘਰ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਮਿਲ ਜੂਗਾ ਜੀ। ਪੰਚੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਗਜ਼ਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲਗਜ਼ਰੀ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਹਰ ਕੋਈ ਲਗਜ਼ਰੀ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿਉਂ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ये एक बहुत उम्दा क्वेश्चन है सर। लग्जरी की जो डेफिनेशन है वो अगर आप आज की डेट में लग्जरी की बात करते हैं तो आपको हर प्रोजेक्ट ये कहता है कि बाय लग्जरी, हम आपको एक लग्जरी दे रहे हैं। असल में हम लोग रियल सेंस में लग्जरी की डेफिनेशन भूल गए हैं सर। लग्जरी का मतलब डबल हाइट लॉबी नहीं, प्रीमियम वॉल क्लैडिंग नहीं, आपके इटालियन मार्बल फ्लोरिंग नहीं है। लग्जरी का एक्चुअल मतलब है हम क्या फ्यूचर, जो घर हम एक इंसान लेता है अपने परिवार के लिए, क्या वो अपने फ्यूचर के हिसाब से ले रहा है। फ्यूचर क्या दिखा रहा है आज आपको? फ्यूचर दिखा रहा है ग्लोबल वार्मिंग, फ्यूचर दिखा रहा है नेचर इतने टर्न्स ले रहा है। क्यों? तो वहाँ पे सिर्फ एक चीज़ जो आ जाती है वो आ जाती है वर्ड सस्टेनेबिलिटी। जहाँ पे जब तक हम लोग रियल लग्जरी को पाने के लिए सस्टेनेबिलिटी के ऊपर काम नहीं करेंगे तब तक आप कोई भी प्रोडक्ट को आप लग्जरी कैटेगरी में, एटलीस्ट मेरी अपनी ओपिनियन में, मैं तो नहीं मानता। रीज़न बीइंग बिकॉज आज जब आप घर के बाहर रहें तो आपके घर के बाहर जो भी, चाहे वो ग्रुप हाउसिंग है चाहे कॉलोनी है, वहाँ का AQI अच्छा हो, आसपास हरियाली हो जी। सो आप ऐसे मटेरियल, बिल्डिंग मटेरियल को यूज़ कर रहे हैं जो एनवायरमेंटल फ्रेंडली हो, तो वो एक रियल सेंस में लग्जरी है फॉर द पीपल। और एक आम आदमी अपने बच्चों के लिए, अपने फ्यूचर के लिए उसी तरह की चीज़ पे इन्वेस्ट करना चाहेगा। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲਗਜ਼ਰੀ ਕੀ ਹੈ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਘਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਔਰ ਖਾਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਿ 21 ਮੰਜ਼ਲਾ, 31 ਮੰਜ਼ਲਾ, 42 ਮੰਜ਼ਲਾ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹ ਲਈਏ ਕਿ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ ਜੀ।
दीपिका, ओवर टू यू। बिल्कुल, तो इस पैनल में सुना आपने कि किस तरह से रियल एस्टेट सेक्टर में चुनौतियां हैं, किस तरह से अगर हम बात चंडीगढ़ की कर रहे हैं, पंजाब की कर रहे हैं, तो रियल एस्टेट सेक्टर का एक बदला हुआ अंदाज हमें देखने को मिलता है। जब बिजनेस की बात होती है और दिल से बात होती है तो एक अलग ही बैलेंस हमें देखने को मिलता है, और यही अनुभव हमने भी किया और उम्मीद करते हैं कि इस पैनल को सुनने के बाद आपका भी यही एक्सपीरियंस रहा हो।